I'm overjoyed to show my couture fashion film Ruhaniyat once again. This is the second film on the theme of Ruhaniyat, which is soulfulness, which is a celebration called life, which is a tribute to all heritage, culture, tradition, handloom, textile, embroideries, craftsmen and artisans. And I'm so happy that once again I'm curating, directing, putting this entire film together for the opening show at Lakme Fashion Week in collaboration with an NGO which is very, very close to my heart, Mijwa. Founded by Shabana Azmi and Namrata Goel, Mijwa and my journey is a 10-year-old journey. Today at Lakme Fashion Week, we are celebrating 30 years of my work, 15 years of my label, a long, personal, very, very phenomenal association with Lakme Fashion Week, and a heartfelt association with Mijwa. All of us are coming together to celebrate tradition, culture, artisan and craftspeople. Mijwa Welfare Society is an NGO that was founded by my father, the noted Urdu poet and lyricist Kaifi Azmi, for the empowerment of women and the girl child in rural India through education and livelihood skilling. He believed that if India is to make real progress, we need to look and focus on our villages. After he passed away, I have taken on the headship of Mijwa Welfare Society, and I am very proud that from a little village which didn't exist on the map of India, Mijwa is now known all over the world. And what I think we have achieved most of all is that child marriage, which was rampant in the area, is now no longer present. Our women have been earning livelihoods through their association with Manish Malhotra for the last 10 years, in which he has shone a light on their exquisite chicken curry and brought it to the threshold of the Indian film industry and the fashion world. I think what Manish has done really he has bridged the gap between the designer and the artisan. He knows most of these women by name. And when he comes to Mijwa, they embrace him as their own. For me, the fact that these women have changed the traditional family structure in which when they were regarded as liabilities, they are now seen as assets because they are earning their own money and standing on their feet. They are active participants in the decision-making process, which was the dream my father saw. Hey, this is Aditi Rao Hydari, and I'm looking forward to Ruhaniyat by Manish Malhotra in support of the Mijwa Welfare Society at Lakme Fashion Week. Hello. Hi. अच्छा हम शुरू करेंगे. आप हमें अपना नाम बताइए प्लीज. मेरा नाम संयोगिता है. मैं मिजवा की ही रहने वाली हूँ. जी. और आपकी उम्र मुझे पूछना नहीं चाहिए. मेरी उम्र 55 साल है. तो आप हमें बताइए प्लीज कि इस महामारी से का आप पर और आपके समुदाय पर क्या असर पड़ा है. परेशानी ये हुई कि हमारे खर्चे बढ़ गए घर के. जब घर के खर्चे बढ़ गए तो काम तो बंद है और हम क्या कर सकते थे. तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम घर के खर्चे पूरा करें या ये जो महामारी फैली कोरोना उससे निपटे या घर में रहें. जी. तो आप पहले भी मिजवा वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ी थी. उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया, आपकी कैसे मदद की, हमें कुछ बता सकते हैं इस बारे में. मैं 1993 से सोसाइटी में जुड़ी हूँ, काम कर रही हूँ. तो उन्होंने हमको ये मदद की कि हमारे लिए मास्क के ऑर्डर लेके आए. तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ मास्क बनाने में लग गई. करीब 50-60 हजार लाख हमने मास्क बनाए. वाह. मास्क बनाए, लोगों में वितरित किया. तो इससे हमको ये खुशी हुई कि हमको काम भी मिला और हमारी रोजी रोटी भी शुरू रही. कुछ बंद नहीं हुआ, इसका एहसास हमको नहीं हुआ. जी. तो जिन लोगों ने डोनेशंस की हैं मिजवा वेलफेयर सोसाइटी को ताकि काम ना रुके, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे. बिल्कुल. देखिए, जो अगर हमारे गांव के लिए
कुछ करते हैं, जैसे हमारे गांव के लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएं और आत्मनिर्भर बने, तो उनको कमाने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, वो गांव में ही रह के कमाएंगे। और जो कोरोना महामारी, उससे भी बड़ी जो महामारी है भूख की, उससे हम निपट सकेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आप सब मनीष मल्होत्रा से जुड़े हुए हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? क्योंकि हमारी लड़कियां आज के समय में मनीष मल्होत्रा के अलावा किसी और डिजाइनर के काम नहीं करना पसंद करती हैं, इसलिए कि उनके काम जो होते हैं उनमें पैसे हमको ज्यादा, हमारी बच्चियों को ज्यादा मिलते हैं, तो वो उससे अपने बड़े बड़े सपने पूरा करती हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई और घर के खर्चे। मेरी बच्चियां मनीष मल्होत्रा को बहुत दुआ देती हैं और उनको बुलाती हैं कि काश एक बार और मेजवा में आ जाए, क्योंकि 2-3 बार आ चुके हैं, उनको बहुत सब प्यार करती हैं। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। माही माही आजा आजा, माही मेरे माही तू आजा। औंसियां पावां राहां तकदी तेरियां, औंसियां पावां राहां तकदी तेरियां, हुण तां तू आजा, हुण तां माही आजा। नैन मोरे तरस गए, हाँ नैन मोरे तरस गए। मन में है जब सी बेकरारी, जान ले तू ये भी मेरे माही। हिज्र की घड़ियां कैसे गुजारी, दिल तुझे ही पुकारे मेरे माही। बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, जदों चन्न छिप जावे तुसी मुखड़ा विखाया करो, जदों चन्न छिप जावे तुसी मुखड़ा विखाया करो। साडी जिंद दा फसाना है, साडी जिंद दा फसाना है। मिलना ते रब नू है, तेरा प्यार बहाना है। मिलना ते रब नू है, तेरा प्यार बहाना है। पाए छंज विच दाने ने, पाए छंज विच दाने ने, असां दिल दे छड़िया, तेरा दिल अल्लाह जाने वे। असां दिल दे छड़िया, तेरा दिल अल्लाह जाने वे। बागां विच मोर होवे, बागां विच मोर होवे, तेरे पिछे क्यों रुलिए जे कोई तेरे जिहा होर होवे। तेरे पिछे क्यों रुलिए जे कोई तेरे जिहा होर होवे। खुश दिसदा जग होवे, खुश दिसदा जग होवे, रब करे आशिकां दा कोई शहर अलग होवे।
दिलों दर्द सुनाया है माया ते जग दे लई दिलों दर्द सुनाया है माया ते दुनिया लई असां दर्द सुनाया है तरस गए नैना मेरे माही आजा 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 तरस गए नैना मेरे 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 तरस गए